حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور حکومت کی وراثت میں حصہ لیا۔ یہ وراثت مادے نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر کی دولت وراثت میں نہیں ملتی۔ ان کا چھوڑا ہوا مال فقیروں یا ضرورت مند کے لیے ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پیغمبروں کے چھوڑے ہوئے مال کا کوئی وراثت نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور دونوں نے کہا سب تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن پر افضل بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کو وراثت میں پایا۔ انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا لشکر جمع ہوا، جس میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے، اور وہ سب تربیب سے صفاون تھے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اللہ سے ایک ایسے شاندار سلطنت کی دعا کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ حکمت کے علاوہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی خاص صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ ہوا کو اپنے حکم کے مطابق چلاتے تھے، پرندے اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، انسان اور جناتوں کو سکھاتے کہ کیسے زمین سے مدن نکال کر ہتھیار اور اوزار بنائیں۔ اور اللہ پاک نے انہیں تانبا یعنی کہ کوپر کا ایک خاص میٹل دیا، جو اس وقت ایک نیا اور انوکھا میٹل تھا، یعنی کہ اس ٹائم کے لوگ کوپر کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں گھوڑے سفر اور جنگ کے لیے سب سے بہترین سواری تھی۔ وہ سپاہیوں اور ان کے سامان کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے استبل کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھوڑوں کی خوبصورتی، ان کی فطرت اور شکل و صورت انہیں اتنی پسند آئی کہ وہ انہیں دیکھتے اور انہیں پیار کرتے رہے۔ لیکن سورج غروب ہونے کو تھا اور عصر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا مجھے یہ اچھی چیز اللہ کی یاد سے زیادہ پیاری نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار کیا، جو انسان، جنات اور پرندوں اور جانوروں کے الگ الگ گروپس میں بٹا ہوا تھا۔ وہ سب سفر کے لیے عسکروں کے ملک کی طرف چلے، اور جب وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، ایک چینٹی نے اس لشکر کو دیکھا اور اپنی دوسری چینٹیوں سے بتایا اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی یہ آواز سنی اور مسکرائے۔ انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ چینٹی نے انہیں اللہ کے پیغمبر کے طور پر پہچانا، جو کہ اللہ کی مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چینٹیوں کی جان بچ گئی۔ بیت المقدس میں ایک بڑے پتھر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت عبادت گاہ بنائی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تھی۔ آج کے ٹائم میں اس عمارت کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، جسے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے گروپ کے ساتھ مکہ کے حرم کے لیے حج پر چلے گئے۔ حج مکمل کرنے کے بعد وہ یمن کے شہر سنا میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے شہر میں پانی کو اپنے گھر تک پہنچانے کا بہت ہی انوکھا طریقہ بنا رکھا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بہترین لگا۔ لیکن ان کے اپنے ملک میں کافی زیادہ ندیاں، تالاب نہیں تھے، اس لیے وہ ایسے نظام کو اپنے ملک میں اپلائی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود نامی پرندے کو ڈھونڈنے کا حکم دیا،
बेसिकली एक चिड़िया थी, ये बर्ड्स थी, जिसकी स्पेशलिटी थी कि वो जमीन के नीचे पानी का पता लगा सकती थी, लेकिन वो परिंदा कहीं भी नजर नहीं आया। इस वजह से गुस्से में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हुदूद ने अपने गायब होने की कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। थोड़ी देर में हुदूद आया और कहा, मुझे एक ऐसी बात पता लगी है जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा के मुल्क से आया हूँ एक जरूरी खबर लेकर। सबा आई थिंक उस टाइम का ओमान था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने हुदूद से पूछा, बताओ क्या खबर है। हुदूद ने कहा, सबा के मुल्क पर एक मलिका बिल्किस हुकूमत करती है जो बहुत दौलतमंद है और एक शानदार तख्त रखती है, लेकिन शैतान ने उनके और उनके लोगों के दिलों में घुसकर उन्हें गुमराह कर दिया है। वो लोग अल्लाह की इबादत के बजाय सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद के बयान को चेक करने के लिए एक खत मलिका बिल्किस के पास भेजा और हुदूद को हुक्म दिया कि वो चुप कर देखे कि क्या होता है। हुदूद ने उस खत को मलिका के पास गिराया। मलिका बिल्किस ने उस खत को उठाया और उसे खोला। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहीम है, तुम मेरे खिलाफ सर उठाने की कोशिश ना करो, बल्कि मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। मलिका ने अपने वजीरों से मशवरा किया। वजीरों ने जंग का मशवरा दिया। अब मलिका बिल्किस के पास कोई और चारा नहीं था। सब्सक्राइब कर लेना। मलिका ने अपने वजीरों से मशवरा किया। वजीरों ने जंग का मशवरा दिया। अब मलिका बिल्किस के पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन मलिका ने कहा, सुलह और दोस्ती ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी और जिल्लत लाती है। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को देखा तो कहा, अल्लाह ने मुझे इतनी हुकूमत और दौलत दी है कि मुझे तुम्हारे तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की वादानियत को आम करना है। तुम्हारे तोहफे वापस ले जाओ। उन्होंने ये भी कहा, अगर मलिका ने शिर्क का रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं उनकी सल्तनत मिटा दूंगा और उनके लोगों को उनकी जमीन से निकाल दूंगा। मलिका बिल्किस के शाफिर यानी कि जो एम्बेसडर थे, जो बात पहुंचाते थे, वो उनके तोहफे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर वापस आए। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बड़े लश्कर और उनकी ताकतवर हुकूमत के बारे में बताया। मलिका ने जंग करने के बजाय खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फैसला किया। मलिका अपने शहजादे और गुलामों के साथ निकली। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके खबर मिली तो उन्होंने अपने जिन्नात और लश्कर से पूछा, तुम में से कौन उनका तख्त यहाँ ला सकता है उनके आने से पहले। एक ताकतवर जिन इफरीत ने कहा, मैं इसे आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ला दूंगा। लेकिन एक और शख्स जो किताब का इल्म रखते थे, उन्होंने कहा, मैं उस तख्त को आंख झपकते ही यहाँ ले आऊंगा। देखते ही देखते मलिका का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। ये एक बहुत बड़ा मौजूदा था जो अल्लाह के हुक्म से हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, ये मेरे रब की फजल है जो मुझे आजमाता है कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नहीं। जो शुक्रगुजार करते हैं वो अपने ही फायदे के लिए होते हैं और जो नाशुक्रे होते हैं वो अपने ही नुकसान के लिए होते हैं। मेरा रब निहायत बेनियाज और करम करने वाला है। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका से पूछा, क्या ये तख्त आपका है? मलिका बिल्किस ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये वही है। मलिका समझदार और होशियार थी। वो अपना तख्त पहचान चुकी थी, लेकिन वो हैरान थी कि ये वहां से यहाँ पर कैसे आ गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बड़े महल का दौरा कराया, जिसमें एक शीशे का बनाया गया फर्श था। जब मलिका ने फर्श को देखा तो उन्होंने समझा कि ये पानी है, इसलिए उन्होंने अपने हल्के से कपड़े उठाकर पानी से बचने की कोशिश की। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक शीशे का बनाया हुआ फर्श है। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और उनकी अक्लमंदी देखी और समझ गई कि ये सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर भी हैं। मलिका ने कहा, मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अपने आप को अल्लाह के हवाले करती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। इस तरह मलिका बिल्किस ने शिर्क का रास्ता
विरासत छोड़कर अल्लाह की इबादत और इस्लाम का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी कौम को भी हिदायत की और वो सब भी अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले बन गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में जिन्नातों को आम से लोगों की तरह और कामगार के तौर पर लगाया गया था। ये काम उन पर एक सजा के तौर पर था जो उनके गुनाहों का अंजाम था, क्योंकि जिन्नातों ने इंसानी अकीदों को गलत मोड़ दिया था, लोगों को ये यकीन दिलाकर कि वो गैब का इल्म रखते हैं और मुस्तकबिल देख सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनका फर्ज था कि वो अपनी कौम के गलत अकीदों को दूर करें। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि गैब का इल्म और मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की मालूमात सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शान और अजमत से नवाजा और सब मखलूकात उनके ताबेदार थी। जब उनकी वफात का वक्त आया तो उनकी जिंदगी के मौजूदा यानी कि वाक़या और एक अच्छा किरदार के मुताबिक उनकी मौत भी एक मौजूदा बन गई। उनकी वफात उस वक्त हुई जब वो अपनी लाठी के सहारे बैठे हुए थे और जिन्नात के काम की निगरानी कर रहे थे। उनकी वफात की खबर किसी को भी न हुई और जिन्नात उनको जिंदा समझकर काम करते रहे। बहुत दिन बाद एक छोटे दीमक ने उनकी लाठी को निभाला। जब लाठी गिर गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म भी जमीन पर गिर गया। तब लोगों को पता लगा कि वो काफी दिन पहले ही वफात पा चुके हैं। इस वाक्य ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते, वरना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म भी रखते। सिर्फ अल्लाह ही गैब का इल्म रखता है। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।